माय डियर ऑडियंस, मैं CAR शुक्ला आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ग्रेचुटी ग्रेचुटी हमने आपको अभी दो पार्ट बताए हैं ग्रेचुटी में। पहला बताया ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 1। दूसरा बताया ग्रेचुटी रिसीव्ड by the employees covered under Payment of Gratuity Act 1972 Section 10 Subsection 10 Clause 2। आज मैं तीसरा आपको बताने वाला हूँ ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। वंस अगेन, employees not covered under the Payment of Gratuity Act 1972 Section 10 Subsection 10 Clause 3। क्लॉज 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं। क्लॉज 2 में एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। और क्लॉज 3 में एम्प्लॉयज़ नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट covered under the payment of gratuity act 1972। तो देखिए इसमें ना तो क्लास 1 ना क्लास 2 के एम्प्लॉय आते हैं। क्लास 3 में वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं हैं। तो इनकी अमाउंट ग्रेचुटी की कितनी एग्जेम्प्ट हुई, हाउ मच अमाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स व्हेन दे हैव रिसीव्ड द ग्रेचुटी। पॉइंट नंबर 1, व्हेन employee has received gratuity during the time of employment, it is fully taxable. If gratuity is received by the legal representative of the deceased employees, it is fully exempt from tax if gratuity becomes due after the death of employee and received by the legal representative. So once again, if gratuity becomes due after the death of employee and it is received by the legal representatives of the deceased employee, it is fully exempt from tax. One point should be noted very carefully: when gratuity becomes due during the lifetime of employee but it is received by the legal representatives of the deceased employee, it is fully taxable in the hands of legal representatives. Either it is his wife or legal representatives of the deceased employees, means children. So once again, gratuity during the time of employment, fully taxable. Gratuity becomes due after the death of employee and received by the legal representatives of the deceased employee, fully exempt. Gratuity becomes due at the time of retirement of the employee who is alive, but gratuity is received after the death of the employee by the legal representatives of the deceased employee, it is fully taxable under the head salary. Next, when gratuity is received by the employee after
after his retirement, then least of the following amount would be exempt from tax and balance would be taxable under the head salary. तो लिस्ट में 4 अमाउंट्स दी गई हैं। पहला हमारा दिया हुआ है हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ completed service. While calculating completed year of service, any fraction of year would be totally ignored. For example, employee has worked for 38 years and 10 months. It will be taken only 38 years. Employee has worked 38 years and 6 months. It would be taken only 38 years. It means fraction of year would be ignored 100%. Number 2, amount specified या notified, that is rupees 20 lakh. Number 3, amount of gratuity actually received. इन तीनों में जो लीस्ट अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे जो हम लोग एवरेज सैलरी लेंगे, एवरेज सैलरी फॉर दिस पर्पस मीन्स एवरेज सैलरी ऑफ 10 months immediately preceding the month of retirement। इसका मतलब जिस महीने में एम्प्लॉई रिटायर होता है वो मंथ्स हटा दिया जाएगा या इग्नोर कर दिया जाएगा। अब आप समझिए कि जैसे एम्प्लॉई रिटायर होता है 30 नवंबर 2023, तो उसकी 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे अक्टूबर से। नवंबर का महीना हम लोग इग्नोर कर देंगे। अक्टूबर 23 से पीछे के 10 महीने की सैलरी जोड़ के 10 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज सैलरी आ जाएगी। सैलरी फॉर दिस पर्पस क्या होगा? सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, प्लस commission based on fixed percentage on annual turnover achieved by the employee। तो सैलरी में खुद सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, प्लस कमीशन इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन एनुअल टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि जो तीनों में लीस्ट अमाउंट होगी उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। तो लीस्ट में हाफ मंथ्स का मतलब जो भी सैलरी होगी उसको आधा कर देंगे इंक्लूडिंग डीए। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए उसकी एवरेज सैलरी जो है वो 2400 जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था। डियरनेस ले लेते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 800, कमीशन भी ले लेते हैं टर्नओवर पे 800, तो उसकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पे एवरेज 4000। ये मान लिया गया सैलरी, डीए और कमीशन यूनिफॉर्म रहा थ्रू आउट द ईयर। तो एवरेज सैलरी हमारी आ जाती है यहाँ पे 4000। 4000 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगी 2000। अब ये आप मान लीजिए कि उसने पीरियड ऑफ सर्विस जो काम किया है वो 38 ईयर्स, तो 38 ईयर्स इंटू 2000 करेंगे तो ये आ जाएगा 76,000। दूसरी लिमिट हम लोग रख देंगे 20 लाख की, दैट इज अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तीसरी लिमिट हम लोग रख देंगे अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। अब आप समझ लीजिए ग्रेच्युटी उसको एक्चुअल में मिली 1,76,000, तो लीस्ट है ओनली 76,000, एग्जेम्प्ट हो जाएगी 76,000, टैक्सेबल हो जाएगी
1,76,000 minus 76,000 द अमाउंट एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल हमारा निकलेगा ₹1,00,000। वंस अगेन लीस्ट अमाउंट है ₹76,000, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड है ₹1,76,000, तो एग्जेम्प्ट हमारी हो जाएगी ₹76,000 सिंस दिस इज द लीस्ट अमाउंट। टैक्सेबल हो जाएगी amount of gratuity actually received minus amount of exemption। तो amount of gratuity actually received ₹1,76,000, exempt है हमारी ₹76,000, टैक्सेबल हमारी हो जाएगी ₹1,00,000। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 subsection 1 and employee can also claim exemption under section 10 subsection 10 clause 3 if he has also opted for alternate tax regime scheme under section 115 BAC। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको आगे और दूंगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।